Hello and welcome. This is Bachpan and HPS. So today we are going to read science for class 9th, and the first unit of the science is matters in our surroundings. So we are going to study about the matters. Okay. First of all, look at the board. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which is scientists have named matters. Okay? So what is the matters? The object which is present surrounding us, okay, is made of particles, and that object is called the matters. Understood? Like that, this is the bottle, okay, and this bottle is made of particles, okay. So this bottle also a matters. Like this board also matters, and in this pic you can see the chair is also matters, and pic here the pic is also matters. So all the objects surrounding us is a matters. Okay. So this is the definition of the matters. You can see the definition in the board. Understood? And now we can say that the matters have a definite size, shape and texture. Okay, like this bottle also have a definite shape, size and the texture. Okay, so this is a matters. Same, this chair also have some size, okay, shape and texture. So we can say the matter surrounding us have some definite shape, size and texture. Okay, this is the matters. Now move to next point. The air we breathe, the food we eat, stone, clouds, stars, planets and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matters. They occupy space, have both mass and volume. So in this pic we can see easily that all the matters present around us, like it may be air, it may be clouds, it may be any animals or any human beings, and it may be any tree, plants. All the things are the matters because they have some mass or they have some volume. ओके, अब देखो हमारे चारों तरफ, ठीक है, जो भी हमको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे बादल हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, जो कि अपना वॉल्यूम रखता है, उसका मास होता है, वो सब के होते हैं, वो सबको मैटर्स बोलते हैं. ओके, everything surrounding us is matters that have volume and mass is called the matters. Okay, in this pic all the things are matters. Understood? And early Indian philosophers classified matters in the form of 5 basic elements: the Panchatattva, air, water, fire, sky and earth. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. अब देखो, जो हमारे ओल्ड फिलोसोफर थे इंडिया के, उन्होंने क्या बोला कि जो यूनिवर्स है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है. ओके, वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? एयर, वाटर, फायर, क्लाउड्स एंड अर्थ. ये 5 थिंग्स है
इनसे मिलके यूनिवर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वो मिलके बना हुआ होता है इनसे। ओके, चाहे वो लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो। और ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इनको उन्होंने बोला था पंचतत्व। ओके, इफ एनीवन आस्क टू यू व्हाट इज द पंचतत्व, व्हाट इज पंचतत्व? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ आर द पंचतत्व। ओके, सो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि मैटर्स क्या है। जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे, आप घर में बैठे हो, आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिखे, चाहे चेयर हो, बेड हो, टेलीविज़न हो, ठीक है, यहाँ तक कि दीवार हो, रूफ हो, फ्लोर हो, ओके, ये सब क्या है? ये सब मैटर्स हैं। अंडरस्टूड? तो ऑल द थिंग्स यू कैन सी दे हैव वॉल्यूम एंड मास इज कॉल्ड मैटर्स। ओके, अंडरस्टूड? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। The physical nature of matters. Matter is made up of a particles. There are two schools of thought prevailed regarding the nature of matters. Matters are continuous like a block of wood. Matters was made up of particles like sand. अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो मैटर्स होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो बाहर से हमको जो दिखाई देता है उसकी बनावट या शेप, या उसमें जो भी उसकी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे बना होता है। तो इसके बारे में 2 थॉट्स हैं। ठीक है, पहली थॉट्स कौन सी होती है? पहली थॉट्स बोलते हैं कि जो मैटर्स होता है वो एक का एक वन ब्लॉक है, यानी कि वो पार्टिकल से नहीं बना हुआ है, पूरा जो ऑब्जेक्ट अपने पास वो पूरा एक ब्लॉक है। और दूसरी थॉट ये बोलती है कि जो मैटर्स हैं वो पूरा एक ब्लॉक नहीं है, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ के बना हुआ है। जैसे जो मैटर्स आर कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। जो फर्स्ट थॉट है वो क्या बोलते हैं कि जैसे बोतल है, ये बोतल है, वो पूरी की जो बोतल क्या है, ये मैटर हो गया, ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, मीन इसमें कोई पार्टिकल नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूरा पूरा एक मैटर्स है, पूरी एक यूनिट है। ठीक है, उस सेकंड थॉट क्या बोलती है कि जो ये बोतल है, जो ये ऑब्जेक्ट है, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, मीन ये पूरा की पूरा एक ब्लॉक नहीं है। अंडरस्टूड? जैसे आप चेयर देखोगे, घर में चेयर होती है, तो एक थॉट होती है जो चेयर है वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। ओके, वो सेकंड ये बोलते हैं कि जो चेयर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को जोड़ के बनाई गई है। ओके, अब हम समझेंगे कि इनमें कौन सी थॉट सही है और कौन सी थॉट रॉन्ग है। अंडरस्टूड? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सॉरी, चेक मैटर्स इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे जो मैटर्स है आइदर इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट, यानी कि वो कंटिन्यू पूरा एक ब्लॉक है या फिर वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब हमको इसके बारे में चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे। एक गिलास, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ओके, इसमें हम एक शुगर क्यूब डाल देंगे इसमें, या चीनी होती है, चीनी का एक दाना डाल देंगे। ओके, क्योंकि चीनी का दाना भी क्या हो गया, मैटर्स हो गया, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है उसका मास है और चीनी के दाने का उसका वॉल्यूम भी है, तो क्या हो गया, मैटर्स हो गया। उसको हमने पानी में डाल दिया, थोड़ी देर उसको हिलाएंगे और फिर देखेंगे कि जो हमारा जो गिलास है उसमें पानी है, उसके अंदर जो चीनी है वो दिखाई नहीं देगी। तो चीनी कहाँ गई, वो चीनी वो उसके अंदर घुल गई। वो क्यों घुल गई? क्योंकि जो चीनी का जो क्यूब था, वो दाना था, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था। फिर उसको पानी में डालने पे वो अगेन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो गया और जो वाटर है उसके साथ में मिक्स हो गया। सो हमको क्या पता चला इससे? वी कैन से दैट द मैटर्स इज नॉट ए कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस, इज ए पार्टिकुलेट, यानी कि जो मैटर है वो पूरा पूरा कंटिन्यू ब्लॉक नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर मैटर्स हमारा था वो एक ब्लॉक होता तो जो चीनी का क्यूब था वो क्यूब ही रहता, वो ऐसे डिवाइड नहीं होता। तो डिवाइड होगा यहाँ पे। आप घरों में चीनी घोलते हैं, जैसे 1 गिलास पानी लेना
उसमें चीनी डालना, थोड़ी देर बाद में आप घोल के देखोगे उसको तो चीनी गायब हो जाएगी। चीनी कहाँ गायब हो गई, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो गई और जो पूरा वाटर था उसमें मिक्स हो गई। मिक्स क्यों हो गई, क्योंकि वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई थी। सो वी कैन से मैटर्स इज पार्टिकल नॉट ए कंटिन्यूअस फ्लो। अंडरस्टूड। सेम प्रैक्टिकल साल्ट के साथ। ओके, घर पे ट्राई करना, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है। ओके, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंटिन्यूअस ब्लॉक और पार्टिकुलेट। अंडरस्टूड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? द पार्टिकल of matters are very small, they are small beyond our imagination। अब ये बता रहा है, हमने ये तो चेक कर लिया कि जो हमारे पास वो मैटर था वो पूरा कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं था, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था। अब हमको ये चेक करना है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं। तो ये बता रहा है जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं वो। इसको कैसे सोचेंगे, आप एक एक्सपेरिमेंट करना घर पे। कैसे, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आप जो अपने पास रेड इंक होती है, रेड इंक या ब्लू इंक जो भी इंक है, वो एक ड्रॉप डाल देना उसके अंदर। ओके, फाउंटेन पेन वाली जो कैमिल वाली इंक होती है उसको डाल देना उसके अंदर। आप देखोगे कि थोड़ी देर में जो वाटर है वो पूरा पूरा रेड या ब्लू हो जाएगा। वो क्यों हो गया पूरा रेड, पानी तो बहुत सारा था और हमने तो सिर्फ एक ड्रॉप डाली थी, किसकी, इंक की। तो क्या हुआ, जो इंक थी, इंक के जो मैटर थे वो इतने स्मॉल थे कि वो इतना सारा जो वॉल्यूम था वाटर का वो पूरे के साथ मिक्स हो गए, वो पूरा कलर उसका रेड या ब्लू कर दिया। ठीक है, इतने छोटे थे वो। और बड़े होते तो थोड़ा पानी ब्लू होता, ये रेड होता, पूरा नहीं होता। तो इतने छोटे थे कि पूरे में मिक्स हो गए वो। अंडरस्टूड। सो ये एक्सपेरिमेंट है। हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, किसकी, वाटर की। ठीक है, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्या होती है, लाल दवा होती है जिसको हम पानी में डालते हैं घरों में, किसके लिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर सके। ओके, ये पोटेशियम परमैंगनेट होती है, ये रेड कलर की होती है। ये पोटेशियम परमैंगनेट को हमने इस वाटर में डाला। ठीक है, ये देखो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी डाली है इसकी पोटेशियम परमैंगनेट की। फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें से रेड कलर ऊपर जा रहा है, फिर और बढ़ा, फिर पूरा वाटर क्या हो गया, रेड हो गया। क्यों हो गया, और यहाँ पे देखेंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट थे इसके जो बेस था वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट बिल्कुल डिजोल्व हो गया। ठीक है, वहाँ से बिल्कुल एंड अप हो गया। कहाँ गए वो पोटेशियम परमैंगनेट, वो पूरा का पूरा जो टेस्ट ट्यूब था उसमें वो डिजोल्व हो गया। ओके, तो इतने स्मॉल पार्टिकल्स थे उसके कि पूरे के पूरे जो टेस्ट ट्यूब था उसमें फैल गए वो। ठीक है, तो हमको ये एक्सपेरिमेंट करना था कि कितने छोटे होते हैं वो। इतने छोटे होते हैं, हमारी जो थॉट है उससे भी छोटे होते हैं। ओके, तो अंडरस्टूड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स। पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो हमको यहाँ पे चेक करना है जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका करेक्टर कैसे होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, उनमें कौन कौन से जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से स्पेशल उसमें फीचर होते हैं, कौन कौन से उसमें गुण होते हैं। अब उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। और देखो इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाटर था। ओके, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें हमने कुछ साल्ट ऐड किया। ठीक है, अभी जस्ट लास्ट वाला पॉइंट था उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्लास वाटर था, उसमें चाहिए आप शुगर मिलाओ या फिर सॉल्ट मिलाओ। थोड़ी देर बाद देखेंगे ये शुगर और सॉल्ट है वो उसमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, जो ग्लास है उसके बेस में वो कहाँ चले जाएगा, वो पूरे उसमें डिजोल्व हो जाएगी, पूरी घुल जाएगी। वो क्यों घुल गई, क्योंकि जो वाटर था उसके क्या है, जो पार्टिकल उनके बीच में स्पेस है। जैसे एक पार्टिकल ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ओके, और जो पार्टिकल्स हैं वाटर के उनके बीच में स्पेस था, वहाँ पे क्या आ गया, जो सॉल्ट था उनके पार्टिकल्स आ गए, तो दोनों आपस में मिक्स हो गए। यहाँ पे देखो ये वाटर है और ये बेस में सॉल्ट है।
ओके, अब धीरे धीरे सोल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो जो वाटर के स्पेस है उसमें बीच में चले जाएंगे और यहाँ पे पूरे में वो स्कैटर हो गए, पूरे में फैल गए वो, ठीक है, और आपस में मिक्सअप हो गए। यहाँ पे देखो सोल्ट और वाटर है, उसके पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो गए। ओके, सेम थिंग्स इन द टी, सेम हम चाय में देखते हैं कैसे हम सिर्फ पानी गर्म करते हैं, उसमें मिल्क डालते हैं, ओके, शुगर डालते हैं और चाय पत्ती डालते हैं। फिर क्या देखेंगे, हमको पानी नहीं दिखाई देता, वो सब मिक्स में दिखाई देता है। वो मिक्स क्यों हो गए? क्योंकि उनके बीच में स्पेस था, इसलिए वो मिक्स हो गए। ओके, जैसे एक रूम है, अगर रूम के अंदर 10 लड़के बैठे हुए हैं तो वो क्या हो गए, मान लो जो लड़के हैं उनको अपन ने मैटर्स मान लिया और हमने बाहर से 5 लड़के और भेज दिए। ओके, फिर वो 5 लड़के हम बैठ जाएंगे, उनके बीच में जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ बैठ जाएंगे, तो वो भी क्या हो गया, आपस में मिक्सअप हो गए। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इसलिए वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। और उनके बीच में स्पेस नहीं होता, जो पार्टिकल्स है वाटर अलग रहता और जो सोल्ट है शुगर वो अलग रहती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आपस में मिक्सअप हो गए। मिक्सअप क्यों हुआ? क्योंकि उनके बीच में स्पेस था जहाँ पे दूसरे पार्टिकल आके सेट हो गए। अंडरस्टूड? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Particles of matters are continuously moving. Moving particles have kinetic energy, so as the temperature rises, particles move faster. देखो अब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं होते, ठीक है। इसको उन्होंने कैसे चेक किया कि जो पार्टिकल्स मूव क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी किसी के पार्टिकल्स के अंदर नहीं होगी तो मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूविंग एनी ऑब्जेक्ट। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, लाइक दिस एग्जाम्पल, ये देखो ये एक अगरबत्ती है, अब इसकी जो धुआं है, ठीक है, अगर ये धुआं है इसको हम जलाएंगे नहीं तो इसकी जो स्मेल है, इसकी स्मेल है वो जहाँ पे ये बहुत स्मॉल एरिया में फैलेगी इसकी स्मेल। लेकिन जैसे हम इसको जला देते हैं तो क्या होता है, इसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। पूरे रूम में क्यों फैल जाती है? पूरे रूम में क्योंकि जलाने से क्या हुआ, ये इसकी जलाने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें हीट बढ़ी, हीट बढ़ने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल थोड़ा फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करने से उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स। सेम एक्सपेरिमेंट, ये ग्लास ऑफ वाटर है, अभी हमने किया था। इस ग्लास ऑफ वाटर में हमने एक ड्रॉप इंक डाल दी, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरा जो वाटर है वो कलरफुल हो गया। कलरफुल क्यों हो गया? क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स थे वो मूव करते हैं। अगर मूव नहीं करते, एक जगह रहते, तो पूरा जो वाटर है वो कलरफुल नहीं होता। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट है काइनेटिक एनर्जी का। आप 2 ग्लास लेना, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। ओके, आप दोनों में एक एक ड्रॉप इंक डालना, तो हम देखोगे जो गर्म पानी है वो थोड़ा फास्ट पूरे में कलर, जो फास्ट है उसमें पूरे में कलर मिक्सअप हो जाएगा रैपिडली, और जो कोल्ड है उसमें कंपेयर टू हॉट वाटर द मिक्सिंग ऑफ कलर इज स्लो। ठीक है, स्लो होता है उसमें। क्यों होता है? क्योंकि जो हॉट वाटर था उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से जो उसके पार्टिकल हैं उनकी मूविंग स्पीड भी ज़्यादा होती है, जिससे वो जल्दी मिक्सअप कर जाते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, देखो ये पिक में क्या दिखाई दे रहा है। इस पिक में पहले जो स्टील रोड है इस पे हैमरिंग कर रहा है। ओके, स्टील रोड पे हैमरिंग कर रहा है। अगर स्टील रोड पे हैमरिंग करने से ये ब्रेक हो जानी चाहिए, लेकिन ब्रेक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं, इसलिए वो एक जगह स्टेबल है, एक दूसरे से अटैच्ड है, इसलिए वो ब्रेक नहीं हो रहा। सेम थिंग इज इन वाटर। वाटर में यहाँ पे जो वाटर है इसमें ये उंगली डाल रहे हैं, तो उंगली डालने से भी जो वाटर है वो ब्रेक नहीं हो रहा, उसके पार्टिकल अलग अलग नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
सो वो एक क्लोजअप या बाइंडअप में रह रहे हैं वो, इसलिए वो अलग अलग नहीं हो रहे, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रहा वाटर। सेम थिंग ये हमको बाय द हैंड एक्सपेरिमेंट इसको समझाया गया। देखो ये बोल रहा कि जैसे हमारी ये उंगली है वो ऐसे है, ठीक है, अगर इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे इसको बाइंड अप कर ले दोनों जो फिंगर्स हैं हमारी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और ये इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगी। ओके, अगर पूरा कर लेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा और ज़्यादा बाइंड अप हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करना ईजी नहीं होगा। तो सेम थिंग इन द पिक्चर वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, सो दे ब्रेक नॉट इजीली, ठीक है, वो इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, दे कांट ब्रेक इजीली। ओके, अंडरस्टूड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So next topic is the state of matter. Okay, so what is the state of matter? Generally, state of matter is the physical character of any matter. It represents the physical structure or shape of any matters. Generally, we divide state of matter in three parts. One is the solid, second is the liquid, and third is the gas. Okay, and the shape or structure of solid different with respect to liquid or gas. Okay, so matters around us exist in three different states like solids, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matters. ओके, तो ये बता रहा है कि जो मैटर्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग तीन कैटेगरी में डिवाइड हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है वो? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ओके, जो तीनों स्टेट हैं उनमें जो हमारा मैटर्स है उसकी शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द सॉलिड, दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द गैस। एग्जाम्पल, हमारा जो वाटर है, ओके, वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है एज ए आइस, लिक्विड फॉर्म में एज ए वाटर, ठीक है, और गैस के फॉर्म में एज ए वेपर, एज ए वाटर वेपर। तो दीज आर द थ्री स्टेट ऑफ वाटर। ओके, अब यू कैन सी इन दिस पिक द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, all the particles of the matters are arranged in very defined path. Okay, and in the liquid state they are not well settled or not well defined. Okay, they are like the disturbing elements, disturbing particles, and the liquids, and in the gas the particles of the water are very far away to each other and not a well plan. ओके, जो गैस होती है उसमें हमारे पार्टिकल्स कोई फिक्स उनका फिक्स है वो उनका स्ट्रक्चर नहीं होता, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं वो मूव करने के लिए। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड जो ये स्टेट है वो सॉलिड और गैस के बीच की है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा मूव कर सकते हैं, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन कंपेयर टू गैस जो उनका जो स्पेस होता है वो लेस होता है, और जो उनकी मूव करने की स्पीड होती है वो भी थोड़ा लेस होती है देन द गैस। और सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करते, उनके स्पेस के बीच में भी एज लेस एज पॉसिबल, इतना कम होता है। सो दीज आर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स। सो व्हाट इज द थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, एंड दे शो द फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स और एनी मैटर्स, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, so these are the state of matters. Now we move to the next point.
नाउ वी रीड these three states one by one. Okay, so the first state is the solid state. What is the solid state? The solid have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes that is have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when under force, but it is difficult to change their shapes, so they are rigid. देखो इसमें बता रहा है ये जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, सॉलिड की जो शेप होती है वो एक तरह से फिक्स होती है, उनकी जो बाउंड्री होती है वो भी फिक्स होती है। ऐसे नहीं बाउंड्री कहीं इधर को जा रही है, ज़्यादा बढ़ गई, कहीं से कम बढ़ गई, एज कम्पेयर टू लिक्विड। और लिक्विड क्या होता है, आप लिक्विड नीचे गिरा दो, वो जहाँ पर ढलाना होगा ज़्यादा फैल जाएगा, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई अपने पास स्टोन का पीस है, उसको हम नीचे गिरा दोगे तो उसकी बाउंड्री फिक्स रहेगी, नीचे गिराने पे वो इतना ही एरिया कवर करेगा। लेकिन लिक्विड है वो क्या करेगा, उसकी बाउंड्री एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो सॉलिड की बाउंड्री फिक्स होती है, शेप भी फिक्स होती है, और वो उनके उनका कंप्रेशन होता है वो भी बहुत लेस होता है, या तो होता नहीं है या फिर बहुत ही लेस होता है, ठीक है। वो देखो जो उनकी शेप होती है वो फिक्स होती है और वो जल्दी से चेंज नहीं होती, डिफिकल्ट टू चेंज, इसलिए उनको रिजिड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी की होती है जिनकी जो शेप होती है वी कांट चेंज इजीली, इज द रिजिड बॉडी। लाइक द एग्जांपल, ये बोतल है, ओके। तो बोतल क्या होगी, सॉलिड होगी। क्यों, ये तो कंप्रेस नहीं हो रही, कंप्रेस इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज है, उनके बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो इसलिए वो कंप्रेस नहीं होगा, तो सॉलिड हो गया ये, ठीक है। रिजिड है, ये रिजिड है क्योंकि इसकी मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको कंप्रेस करके इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप चेंज करने चाह रहा हूँ, इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये रिजिड हो गया, ओके। और इसकी बाउंड्री भी फिक्स है, तो यहाँ पे बोतल इतना बड़ा है, नीचे डाल दूंगा तब भी इतना बड़ा रहेगा, ये ऐसे नहीं कि इसकी बाउंड्री ऊपर तक बढ़ गई, ठीक है, ये बोतल थोड़ा लंबा हो गया, ऐसा नहीं होगा। सो ये एक सॉलिड का एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है सॉलिड के, जैसे चेयर हो गया, माउंटेन हो गया, हमारी बोन है वो भी क्या होती है, फिक्स होती है, सॉलिड होती है, कंप्रेस करने पे उनकी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती है, रिजिड होती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड। और भी एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे आयरन होता है, आयरन भी सॉलिड होता है, आइस है, आइस भी सॉलिड है, वुड है, वुड भी सॉलिड है, ठीक है। आपके आसपास आपको दो सॉलिड चीज दिख रही है, आप उनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल अबाउट सॉलिड। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सॉलिड के, जो अभी हमने सॉलिड के जो करेक्टर पढ़ा था, जो करेक्टर हमने पढ़ा था उनके अलावा कुछ और करेक्टर शो करते हैं सॉलिड। सो फर्स्ट इज ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर force and regain the same shape when the force is removed. If excessive force is applied it break. अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने बताया था कि जो ओके, अब देखो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन पे हम यदि फोर्स अप्लाई करें तो क्या होता है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, उनमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, बट आफ्टर रिमूविंग द फोर्स दे गेन देयर ओरिजिनल शेप्स, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, बट दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो सॉलिड बिकॉज आफ्टर रिमूविंग द फोर्स देयर शेप्स रिमेन ओरिजिनल, देयर इज नो डिफॉर्मेशन और नो चेंज। जैसे रबर है, रबर को हम खींचेंगे, रबर क्या है, सॉलिड है क्योंकि उसकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे हम रबर को खींचते हैं क्या होती है, उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें जो फोर्स अप्लाई किया था उसको रिमूव कर देते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, ओके। तो जो हम खींचने पर उसकी शेप चेंज हो गई, छोड़ने पर वापस आ गई, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी इलास्टिसिटी, अंडरस्टूड। लेकिन जो रबर है वो हमारा सॉलिड ही है। क्यों सॉलिड है, कि फोर्स लगाया, खींच गया, फोर्स लगा, छोड़ दिया, जो पहली शेप थी वो शेप आ जाएगी एंड में फोर्स हटाने पे, ठीक है।
तो दिस इज आल्सो सॉलिड। अंडरस्टूड? नाउ द शेप ऑफ ईच individual sugar or salt crystal remain fixed whether we take in it overhand, put in a plate or in a jar। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, हमने बोला था कि जो सॉलिड है उनकी शेप होती है वो फिक्स होती है, लेकिन आप देखोगे जैसे शुगर है, आप शुगर को हाथ में लोगे उसकी शेप अलग आएगी। यदि हम उसको ऐसे कोई राउंड बोतल है उसमें डालेंगे उसकी शेप राउंड हो जाएगी। ये ऐसे रेक्टेंगल शेप है, इसके अंदर डालेंगे तो रेक्टेंगल शेप हो जाएगा। तो फिर आप तो बोलेंगे उसकी शेप चेंज हो गई, नहीं। देखो शुगर है, जो शुगर क्यूब है वो तो फिक्स रहेगा, शुगर क्यूब तो उसकी शेप तो फिक्स रहेगी, लेकिन बहुत सारी जो शुगर आती है, बहुत सारी जो शुगर है उसको हम जिस बोतल में डालेंगे वो वैसे शेप ले लेते हैं। लेकिन हमने जो सॉलिड किसको माना था? शुगर क्यूब को माना था, पूरी शुगर को नहीं। जैसे हम है, ठीक है, हम इंसान है, हमारी शेप क्या है? फिक्स है। कहीं भी चले जाओ ये बॉडी रहेगी, चेंज तो होगी नहीं कि इधर से बढ़ गया उधर से बढ़ गया। लेकिन जैसे हम क्या होता है, एक रूम में हम, ये रेक्टेंगल रूम है, उसमें हम बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता, तो सबकी शेप कैसे होगी? रेक्टेंगल। अगर कोई राउंड रूम है उसमें चलेंगे तो पूरे जो हम ऑब्जेक्ट हैं पूरे एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो सबकी शेप कैसे हो जाएगी? सब कैसे दिखेंगे? ऊपर से राउंड राउंड दिखेंगे सब, ठीक है। जो मेन सॉलिड था, जो मेन ऑब्जेक्ट था, मेन मैटर था, वो कौन था? शुगर था या साल्ट था। उनकी शेप तो फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने पे जो उनको जैसा वॉल्यूम मिलता है वो वैसे वॉल्यूम गेन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, द स्पंज हैज मिनट होल in which air is trapped when we press it, the air is expelled about and we are able to compress it। अब देखो, आपने ऐसे स्पंज देखा होगा, ये स्पंज आता है ऐसे गद्दी से आती है, ये फिर अपन बर्तन धोते हैं, वो भी एक स्पंज होता है। उसमें क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर तो फिक्स होती है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे होती है? उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। जो स्पंज है उसके अंदर छोटे छोटे होल हैं, वो ऑलरेडी उसमें फिक्स आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट होल होते हैं, वो अपन बाहर से भी उसको देख सकते हैं। आप स्पंज में देख सकते हो, बाहर से उसमें होल होते हैं। होल के अंदर क्या होता है? एयर होती है। जो एयर क्या करती है, वो जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे, एयर क्या होती है? एक्सपेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जो एयर बाहर निकली तो वो कंप्रेस होते हैं। तो लेकिन जैसे हम वो कंप्रेशन फोर्स रिमूव करते हैं, वो वापस उसी शेप में गेन कर लेता है, ठीक है। जो स्पंज है वापस खुद की शेप गेन कर लेगा। क्यों गेन कर लेगा? जो उसके होल है उसमें फिर से एयर आ जाएगी, कहाँ से? एनवायरमेंट से, ठीक है। तो लेकिन जो अपना स्पंज है, उसकी स्पंज है वो एज ए सॉलिड है, ओके। लेकिन वो उसकी शेप कब चेंज हो रही है? ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स, बट आफ्टर वी रिमूव द फोर्स दे गेन देयर ओरिजिनल शेप अगेन। तो दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स। अंडरस्टूड? Now we have to discuss the liquid state. Okay, so we are going to discuss about the liquid. Liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape. The shape between liquid particles is greater as compared to particle in the solid state, so they are not rigid but can be called fluid। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। ये बोल रहे हैं कि जो लिक्विड है हमारे पास, उसकी शेप तो फिक्स होती नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे? ये बोतल है, इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी की अपनी कोई शेप नहीं होती है। ये बोतल कैसी है? राउंड है। अगर इसमें मैंने पानी डाल दिया तो पानी शेप कैसे हो जाएगी? राउंड, एज ए सिलेंडर, ये सिलेंडर टाइप में एज ए सिलेंडर शेप हो जाएगी। जैसे मैं वाटर को किसी रेक्टेंगल जो कंटेनर है उसमें डालूंगा तो उसकी शेप रेक्टेंगल हो जाएगी, ओके। या फिर किसी प्लेट में डालूंगा तो फ्लैट हो जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम कैसे? अगर इसमें 1 लीटर वाटर है, नीचे फैला दूंगा तो भी लीटर रहेगा, किसी दूसरे कंटेनर में डाल दूंगा तो भी लीटर रहेगा, किसी रेक्टेंगल बोतल डालूंगा तो भी 1 लीटर रहेगा। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो उसका हमेशा फिक्स रहता है, ओके। बट उसकी शेप चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कंटेनर इन विच वी पुट इट
we put the water in it. Okay, so according to container the shape of the liquid change but the volume of the liquid always remain same. ये शो कर रहा है जैसे बोतल है, इसको हम एक ग्लास में डालते हैं तो इसकी शेप कैसी हो गई, राउंड हो गई, राउंड शेप हो गई इसको बोतल की। अगर हम इसको अगेन किसी रेक्टेंगल बोतल में डालेंगे या रेक्टेंगल ग्लास में डालेंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको नीचे फैला देंगे तो इस तरह से फ्लैट शेप हो जाएगी। तो ये शो कर रहा है लिक्विड स्टेट के बारे में। अब देखो, और जो स्पेस है अभी जस्ट बताया था मैंने लास्ट पिक में इमेज से, जो स्पेस होता है लिक्विड का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए वो ज़्यादा मूव करते हैं। आप देखो लिक्विड को फैला दो नीचे, वो ज़्यादा मूव करेगा वो, क्यों? क्योंकि स्पेस उसके बीच में ज़्यादा होता है वो, ठीक है। एंड दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं होते। रिजिड क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। जिनकी शेप फिक्स होती है वो रिजिड होते हैं, एग्जाम्पल वुड। लेकिन वाटर क्या होता है, वाटर की शेप चेंज होती है, कहीं कोई से कंटेनर डालेंगे अलग शेप, दूसरे कंटेनर डालेंगे अलग शेप, तो उसको हम रिजिड नहीं बोल सकते। दे कॉल द फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, गैस और लिक्विड को हम एक साथ फ्लूइड बोलते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द लिक्विड स्टेट, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज द गैसियस स्टेट। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गैसियस स्टेट। सो लुक एट द बोर्ड, गैस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम. Gases have lower density than other state of matters such as solids and liquids. There is a great deal of empty space between particles which have a lot of kinetic energy. The particles move very fast and collide into one another, causing them to diffuse or spread out until they are evenly distributed throughout the volume of the container. When more gas particles enter a container, there is less space for the particles to spread out and they become compressed. The particles exert more force on the interior volume of the container. This force is called the pressure. जस्ट मैंने 2 स्लाइड पहले इमेज से दिखाया था कि जो हमारे पास गैस होती है, गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है और कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। गैस भी कैसे होती है, हम जैसे कंटेनर डालेंगे उसको, जैसे कंटेनर डालेंगे उस कंटेनर की शेप ले लेगा, तो शेप फिक्स नहीं हुई। लेकिन इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता, इसको छोटे कंटेनर डालेंगे तो गैस तो पूरे में फैल जाएगी, और बड़े में डालेंगे तो बड़े में फैल जाएगी, तो बड़ा वॉल्यूम आएगा। छोटे में डालेंगे तो कम वॉल्यूम आएगा। ओके, वो वॉल्यूम चेंज क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच में गैसों के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो ज़्यादा होता है रेदर देन लिक्विड और सॉलिड्स। अंडरस्टूड? सो द पार्टिकल ऑफ द गैसेज मूव फास्टर देन लिक्विड और सॉलिड्स, सो इट्स चेंज इट्स वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू कंटेनर इन विच इट केप्ट। एंड एक और देखो, जब हम किसी भी कंटेनर में गैस डालते हैं तो गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा मूव करती है। तो मूव करेगी तो वो जो उसके बाउंड्री होती है या फिर वॉल होती है कंटेनर की, उस पर स्ट्राइक करती है या फिर उस पर फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं प्रेशर। जो फोर्स एग्जर्ट करती है वो, उस फोर्स को हम बोलेंगे प्रेशर। ओके, और जैसे ही मान लो ये सिलेंडर है, ये फिक्स है, फिक्स सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसके हम अंदर गैस डालेंगे तो गैस क्या होगी, पूरी में फैल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इतना आएगा। अगर सिलेंडर इतना होता, मान लो अगर 1 लीटर है, वो 1 लीटर गैस है, उसके इतने में डालेंगे तो इसका वॉल्यूम इतना आएगा। अगर वही 1 लीटर गैस को हम छोटा सिलेंडर था उसमें डालेंगे तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा। जो स्पेस कम हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है, अब हम इसमें और भी गैस डाल रहे हैं, और भी गैस डाल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जो स्पेस था वो कम होता जाएगा। जो स्पेस कम होता जाएगा इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आप एग्जांपल तौर पर देखो, हमारा रूम है और रूम में 10 लड़के हैं, ठीक है। तो
तो उसकी डेंसिटी फिक्स है 10 लड़कों की, जितना रूम है, जितने लड़के हैं, लड़कों का जो मास, लड़कों का जो मास है डिवाइड बाई रूम का वॉल्यूम, ठीक है। और जैसे हम उस रूम में 5 लड़के और भेज देते हैं, 5 लड़कों को और एंटर कर देते हैं रूम के अंदर, तो क्या हो जाएगा, स्पेस अब और भी कम हो जाएगा, स्पेस और भी कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स था, रूम तो फिक्स है, रूम तो बड़ा है, छोटा नहीं होगा, लेकिन लड़के बढ़ रहे हैं, यानी कि मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास बटे वॉल्यूम। Now look at the board. The next point is how matter change states. जो मैटर्स होते हैं वो स्टेट कैसे चेंज करते हैं। अपने स्टेट मीन्स सॉलिड स्टेट, चेंज मीन सॉलिड टू सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट, और गैस स्टेट टू लिक्विड, और गैस टू सॉलिड्स, आइदर सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, एनी स्टेट दे कैन चेंज। ओके, अब डिस्कस करना है कि हाउ दे चेंज देयर स्टेट्स। मैटर चेंज स्टेट व्हेन एनर्जी इज एडेड और टेकन अवे। मोस्ट मैटर चेंजेस बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, चेंजेस इन प्रेशर कैन चेंज मैटर टू। द एटम्स एंड मोलिक्यूल्स दैट मेक अप मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग, even the molecules in solids are moving, just not very much. When matter is heated enough, the molecules move faster and with greater energy. If enough heat is added, a solid can become liquid and a liquid can become gas. In the same way, molecules slow down when they are cooled. Matter that is cooled to a certain point changes. For example, a liquid become a solid. So in this pic we can see that the changing state of any matters depend on the energy. Which energy? If we give or if we take the energy. Okay, अब देखो जैसे कोई आइस है, ये कोई आइस है, ठीक है, इस टाइम पे ये आइस है सॉलिड स्टेट में, इस टाइम पे सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट मीन इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज है, उनके बीच में स्पेस नहीं है। ओके, जैसे हम इसको हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा, इसके पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलने से क्या होगी, जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूविंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और इनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। तो जैसे इसके बीच में स्पेस बढ़ेगा और पार्टिकल्स के मूव करने की स्पीड इंक्रीज होएगी, तो किस में चेंज जाएगा, लिक्विड में। So totally the changing of state from solid to liquid, it depend on the energy if we give to the solid state or we take to the liquid state. Okay? अब देखो जैसे ही अब एक और स्टेट आती है, मान लो वो लिक्विड है। ओके, लिक्विड स्टेट में कोई वाटर है। अब लिक्विड स्टेट में वाटर क्या होता है, उसके बीच में स्पेस ज़्यादा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy, what is the kinetic energy? It comes from the heat. Okay, it comes from the heat. So this energy, if we taken away from the liquid, then the moving speed of the particle will slow down, and the space of the particle become lesser and lesser. So the particle will attach to each other and make the एक compact structure like the solid. जैसे कोई लिक्विड है उससे हम एनर्जी लेते हैं, तो पार्टिकल से मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा और वो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। जैसे पानी चेंज होता है आइस में, क्यों, क्योंकि हम उसकी एनर्जी को ले लेते हैं। अब ऐसे देख लो, जैसे एक लड़का है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके, अगर मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, मान लो मैंने खाना खा लिया, तो मुझ में क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो एनर्जी आने से क्या हो जाएगी, मुझ में दौड़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, क्यों, जो मैं मूव कर रहा हूँ या रन कर रहा हूँ उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मेरे में एनर्जी आ गई। अब जैसे कोई मेरी एनर्जी ले लेता है, जैसे मैं टायर्ड हो गया, टायर्ड होने से क्या होता है, हमारी एनर्जी चली जाती है, तो क्या मैं मूव कर पाऊँगा, अगर नहीं, मूव करने की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो सेम थिंग्स इन द पार्टिकल्स,
जैसे हम पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं उनकी मूविंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी लेते हैं तो मूविंग स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जिससे उनकी जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है। आपने बहुत चेंज देखा होगा, बर्फ़ पानी बदलती है और पानी बर्फ़ में बदलता है। ओके, सो टोटली डिपेंड ऑन द एनर्जी विच वी गिव टू द matters or we taken from the matters. Okay, now move to the next point. This is the sublimation. ये पूरा sublimation देखते हैं। The solid changing into liquid और liquid changing into gas. Vice versa, gas changes into liquid and liquid changes into solid. And other solid change into gas or gas changes into solid. So these three states can change to each other. Okay, and the solid state of the matter changes into liquid is called the melting. मान लो कोई आइस है, आइस किस में, पानी में चेंज हो रही है तो उसको बोल देंगे हम मेल्टिंग, आइस गल रही है। ओके, आपने बहुत देखा होगा बर्फ को पानी में चेंज होता हुआ, उसको हम मेल्टिंग बोलेंगे। और वही लिक्विड और वही पानी है और वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। एंड द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। आप देखोगे खाना पकाते हो, खाने में क्या होता है, जैसे दाल पका रहे हो, दाल में पानी होता है, जो से गर्म होता है उसमें से जो वेपर होते हैं वो निकलती है, तो वही क्या है, जो लिक्विड है वो चेंज हो रहा है गैस में। दिस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन। वाइस वर्सा द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। आप देखोगे जैसे मान लो सब्जी में से जो पानी भाप बन के उड़ रहा है, उसके ऊपर आप प्लेट लगा दो तो क्या होएगा, जो भाप है वो जो प्लेट से स्ट्राइक करेगी प्लेट पे और वहाँ पे क्या होएगा, वाटर ड्रॉप वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द लिक्विफेक्शन। एंड अदर एग्जांपल, सॉलिड चेंजेस इनटू गैस। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, लिक्विड में नहीं जाते, दे आर कॉल्ड द वोलेटाइल सॉलिड। एग्जांपल कपूर। आप देखोगे जो कपूर होता है घरों में, कपूर क्या होता है, कपूर एक तरह से सॉलिड होता है, पूरा सॉलिड होता है कपूर क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर और शेप क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे आप कपूर को जलाना तो क्या होगा, कपूर लिक्विड में चेंज नहीं होगा, कपूर डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाएगा, नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसका राख भी नहीं मिलती उसकी। तो कपूर क्या हो गया एग्जाम्पल, चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। और वापिस जो वाइस वर्सा गैस चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड। जैसे कपूर जलाया आपने, कपूर के बनेगा वेपर बन के उड़ रहा है, आप जो वेपर उसके ऊपर प्लेट लगा देना तो देखोगे जो कपूर है वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा प्लेट्स पे। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेट चेंज फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो दीज आर द थ्री स्टेज विच इंटरचेंज फ्रॉम ईच अदर। नाउ टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point or fusion. It is indication of the strength of the force of attraction between its particle. Melting point of ice 273.15 Kelvin और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारे पास जो आइस है, ठीक है, हमारे पास जो आइस है, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में। अगर उस आइस को हमको चेंज करना है किसमें, लिक्विड में, तो लिक्विड में चेंज करने पर या फिर वो आइस है वो लिक्विड में चेंज होती है जिस टेम्परेचर पर, वो मिनिमम टेम्परेचर पे, तो वो मिनिमम टेम्परेचर कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस है, आइस कितने टेम्परेचर, कितने मिनिमम टेम्परेचर पे चेंज होता है, आइस टू लिक्विड इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 Kelvin. These are the unit of the temperature. Okay, this is the CGS unit and this is the SI units. So if anyone asks to you what is the melting point of the water or ice, so melting point of ice is 273.15 Kelvin और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो हाउ द मेल्टिंग इज अकर, दिस इज द सॉलिड स्टेट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द मोलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड start to move to each other, okay, and
after increasing some temperature the solid change into the liquid, and in the liquid state the particles move free and the space occurs between the particles of the solids. Okay, then this is the called the changing stage from solid to liquid. But the temperature in this picture you can see we increase the temperature to change solid to liquid, and the minimum temperature from there the solid or ice started just solid to liquid. That temperature is called the melting point. ओके, जिस टेम्परेचर पर हमारा जो आइस है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना जस्ट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द लेटेंट हीट? ओके, लेटेंट हीट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर और ए लिक्विड इनटू ए वेपर विदाउट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर. देखो ये बता रहा है कि हमारे पास जो सॉलिड है या आइस का क्यूब है, जो आइस को मुझे चेंज करना है लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर मुझे फिक्स रखना है. जो पहली वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉलिड की स्टेट है वो चेंज होती है. यहाँ पे कैसे चेंज करना है मुझे? ओनली थ्रू द एनर्जी. ओके, वो एनर्जी कैसे कि जो आइस है मुझे उसके टेम्परेचर तो फिक्स रखना है, लेकिन उसी टेम्परेचर पर उस आइस को मुझे चेंज करना है लिक्विड में. तो उसको चेंज करने के मुझे जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, या फिर जो हीट चाहिए, जो एनर्जी ये उस हीट को मैं बोलता हूँ लेटेंट हीट. जैसे आप देखो पानी होता है 0 डिग्री पे पानी भी हो सकता है और 0 डिग्री पे आइस भी हो सकती है. क्यों? बिकॉज इट डिपेंड ऑन द प्रेशर और हीट. जैसे मान लो 0 डिग्री पानी है, 0 डिग्री आइस है. अगर 0 डिग्री आइस पे मैं कुछ उसमें इतनी हीट देता हूँ उसका टेम्परेचर तो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर तो 0 रहेगा, लेकिन जो आइस है वो चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड में. और लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा? 0. तो जो मैंने उसको मिनिमम जो हीट दी है उसी हीट को बोलूँगा मैं लेटेंट हीट. ओके, लेटेंट हीट आप ऐसे देख सकते हो. हम चपाती बनाते हैं, जैसे हमारी चपाती फूल जाती है, घरों में रोटी बनाते हैं, रोटी फूल जाती है, तो आप देखना वैसे तो आप हाथ में ले सकते हो उस चपाती को, इतना गर्म नहीं लगेगा. जैसे जो फूली हुई चपाती है उसमें हम उंगली डालते हैं तो हमको हमारी उंगली जल जाती है. वो उंगली क्यों जलती है? क्योंकि उंगली जो चपाती है उसके अंदर जो वेपर निकलती है, ठीक है, जो हॉट वेपर होती है वो क्या होती है? एक तरह से लेटेंट हीट होती है, जो कि वाटर को चेंज किस में कर रही है? वो गैस में. जो वेपर को चेंज, जो लिक्विड, जो उसके अंदर लिक्विड था, पानी था, उसको चेंज कर रही थी वो वेपर में. तो वेपर थी, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अप्रोक्स 100 के आसपास होता है. क्योंकि वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से जो लिक्विड स्टेट है उससे गैस स्टेट में चेंज होता है, इसलिए हमारा हाथ है वो ज़्यादा जल जाता है. तो रोटी है उसके अंदर भी लेटेंट हीट होती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? The boiling point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals the pressure surrounding the liquid and the liquid change into a vapor, and the boiling point of a liquid varies depending upon the surrounding environmental pressure. For water the boiling point is 100 degree centigrade. देखो अब ये बोल रहा है कि boiling point क्या होता है. जैसे हमारी कोई लिक्विड स्टेट है, ओके, लिक्विड स्टेट है, अगर लिक्विड स्टेट से जस्ट गैस स्टेट में चेंज होता है. वेपर क्या होती है? गैस होती है. लिक्विड से वेपर में या लिक्विड से गैस में चेंज होती है, लेकिन जो वेपर और लिक्विड है उसकी जो हमारा लिक्विड है उसके जो प्रेशर है वो आसपास के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए. ओके, इक्वल होना चाहिए. और जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड जस्ट चेंज होती है वेपर में या गैस में, तो वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट. और फॉर वाटर इट इज कॉल्ड द 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन. एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको. हम क्या होते हैं, आप पानी लेना, पानी को गैस पे गर्म करना, आप देखोगे कि धीरे धीरे पानी गर्म होगा,
फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जो पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा। बॉईल मतलब जो उसको हम उखलना बोलते हैं, ठीक है, खोलना बोलते हैं, ऐसे खोलना शुरू हो जाएगा। तो खोलना शुरू हो गया और ऊपर से उसमें वेपर निकलने लगी, भाप निकलने लगी। इसका मतलब हुआ हमारा जो पानी का टेम्परेचर था वो पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि पानी था वो चेंज होने लग गया किसमें, लिक्विड में, सॉरी पानी चेंज हो गया किसमें, गैस में। सो द टेम्परेचर एट विच वाटर और लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेज और वेपर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है पानी हमारा, वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। हमारा वाटर कितने टेम्परेचर बॉईल करता है, 100 पे। पानी बॉईल करता है 100 पे। अंडरस्टूड? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। अब हमको देखना है कि जो हमारा मैटर है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। बाई अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज एंड क्लोजर। सो बाई अप्लाइंग प्रेशर सॉलिड कैन बी converted into liquid and further applying more pressure liquid can be converted into gases। अब ये बोल रहा है कि एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर में कुछ पार्टिकल्स हैं, ओके। जैसे ही हम इस और ऊपर एक पिस्टन लगी हुई है, जैसे हम पिस्टन को दबाते हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो स्पेस धीरे धीरे रिड्यूस होएगा और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज आएंगे। और प्रेशर अप्लाई करते हैं, इतने क्लोज आएंगे कि वो उसमें जो हमारे पास जो मैटर्स था वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ओके। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप ऐसे देख लो कि अभी बताया था एग्जांपल, स्पंज था, हम स्पंज को करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होएगा, वो बहुत ही उसके अंदर जो स्पेस थे वो स्पेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट या रिजिड बॉडी बन जाता है वो प्रेशर अप्लाई करने पे। या फिर एक और एग्जांपल देखो, ये मान लो हमारे पास गैस है, एक सिलेंडर गैस है, और गैस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे कि धीरे धीरे वो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो सकती है वो, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके। ये प्रेशर अप्लाई करने से जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो सकती है। अब नाउ next topic is the evaporation। So what is the evaporation? First we read in the so first of all look at the board। Evaporation is a type of vaporization that occurs on the surface of a liquid as it changes into the gas phase। The surrounding gas must not be saturated with the evaporating substance। When the molecules of the liquids collide, they transfer energy to each other based on how they collide with each other, okay। इवेपोराइजेशन है, इसको हम हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। मीन लाइक एग्जांपल, दिस इज द वाटर, आइदर इट मे बी इन ओशियन और इन एनी पॉन्ड और एनी रिवर। when the sunlight fall on the water and the water got energy from the sun and water got heat up, and after the heat up water change it state from liquid to vapor, okay, and this vapor goes into the environment and this process is called the evaporation। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे पास जो, आप एक एग्जांपल देखना कि एक जो हमारे पास थाली होती है उसमें आप पानी डालना और पानी को धूप में रख देना, तो आप कुछ देर में देखेंगे जो पानी क्वांटिटी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। वो धीरे धीरे रिड्यूस क्यों होती है, क्योंकि सनलाइट के थ्रू एनर्जी आती है, वो एनर्जी किस में जाती है, वाटर में, और वाटर क्या होता है, हीटअप करता है, हीटअप करने से वाटर की जो स्टेट है वो लिक्विड से वेपर में चेंज होती है, इसलिए जो वेपर होती है वो वहाँ से फ्लो अवे हो जाती है और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिड्यूस होती जाती है, ओके। दिस इज कॉल्ड द एवोपोरेशन, ठीक है। और एवोपोरेशन की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो सराउंडिंग एयर है वो सैचुरेटेड नहीं होनी चाहिए, वो एयर ड्राई होनी चाहिए। सैचुरेटेड मीन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, जो हमारे आसपास की एयर है उसमें वाटर की क्वांटिटी या अमाउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो
आसपास की एयर है वो नमी या नम एयर नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो वेपर है, ठीक है, जो वेपर जो फ्लाई अवे करती है उसको, वेपर जो फ्लाई अवे करती है, जो ड्राई वेपर फ्लाई अवे करती है वो इंटरसेक्ट करती है विद द मॉइस्चर प्रेजेंट सराउंडिंग द एयर, सो द इवेपोरेशन रेट डिक्रीजेज। ओके, जैसे अगर आसपास की एयर ड्राई है तो इजीली जो हमारा जो वेपर है वो इजीली मूव कर सकता है, लेकिन अगर आसपास की एयर में पहले वाटर प्रेजेंट है तो जो वेपर जो हमारी फ्लो अवे कर रही है, ऊपर वेपर जा रही है लिक्विड को लेके, वो इतना जा नहीं पाएगी, क्योंकि जो एयर है उसके पास तो वाटर तो पहले से ही है। अगर वो ड्राई होती, आसपास की एयर है वो ड्राई होती, तो पानी हमारा ऊपर फ्लाई कर सकता था या पानी उड़ सकता था। तो आज सराउंडिंग एयर ड्राई होनी चाहिए, नोट द सैचुरेशन इन द एयर। अब देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ एवापोरेशन के। जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं, ओके, कपड़े धोने पर हम क्या करते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं। ये धूप में सुखाने से क्या होता है, जो हीट आती है फ्रॉम द सन, उससे क्या होता है हमारा वाटर है वो चेंज होता है किसमें, लिक्विड टू वेपर, और वेपर बन के उड़ जाता है। तो हमारा जो क्लॉथ्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि उनसे पानी उड़ जाता है। तो किस कारण होता है वो, एवापोरेशन के कारण। ओके, और एक और एग्जाम्पल बताया था, मान लो जो बारिश का दिन है, ठीक है, बारिश के दिन में क्या होता है, आसपास की एयर क्या हो जाती है, नम हो जाती है, उसमें मॉइस्चर जाती है। मॉइस्चर आने से क्या होता है, जो हमारी जो वेपर है जो लिक्विड लेके ऊपर जाती है वो इतनी रैपिडली इतनी जा नहीं पाती वो। तो आप देखोगे जो हमारे जो बारिश होते हैं, बारिश में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लेकिन गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि बारिश में मॉइस्चर होती है और समर में वो जो एयर होती है वो ड्राई होती है। ओके, सो द वेपर कैन मूव इजीली विद द वाटर। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली ए लिक्विड एवेपोरेट्स। दे इंक्लूड्स टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। A cup of hot water will evaporate more quickly than a cup of cold water. Okay, export surface area of the liquid. The same amount of water will evaporate more quickly in a wide shallow bowl than a tall narrow glass. देखो पहला इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। जो हमारा इवेपोरेशन है इसको इफेक्ट करने का पहला फैक्टर है टेम्परेचर। आप देखोगे, आप एक्सपेरिमेंट करना घर पे। जो एक हमारे पास जो कंटेनर है उसमें आप हॉट वाटर लेना और दूसरे कंटेनर में कोल्ड वाटर लेना, दोनों को इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट उसको रख देना। तो आप देखो जो हॉट वाटर है वो जल्दी से एवोपरेट होता है, ओके, रेदर देन द कोल्ड वाटर। बिकॉज हॉट वाटर होता है वो पहले हॉट होता है, उसकी जो टेम्परेचर हाई होता है नियर टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और जैसे ही जो हीट और आती है वो इजीली वेपोराइज कर जाता है। ओके, सो हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने से जो एवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाती है। आप देखोगे कि जो समर का सीजन होता है, समर मौसम होता है, उसमें हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं रेदर देन द विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जिससे वेपोराइजेशन रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा इफेक्ट होता है द सरफेस का। आपके पास सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है, एक तो उसको आप एक ऐसे मान लो ये बोतल है, एक तो मैं 1 लीटर वाटर इसमें रखता हूँ और दूसरा 1 लीटर वाटर मैं ज़मीन में फैला देता हूँ। तो क्या हुआ, इसका जो सनलाइट पड़ेगी वो कितने से एरिया में पड़ेगी, ओनली जस्ट टॉप ऑफ द वाटर। उसका सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा विद द सनलाइट एंड द वाटर विच फॉलन ऑन द ग्राउंड, द कॉन्टैक्ट एरिया विद द सनलाइट इज द लार्ज। तो लार्ज एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो जल्दी हीटअप होएगा और उसका इवेपोराइजेशन जल्दी से हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट एरिया या फिर सरफेस एरिया ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फैक्टर फॉर द अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। एंड नाउ नेक्स्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इन द लिक्विड। प्योर वाटर विल इवेपोरेट मोर क्विकली देन सॉल्ट वाटर। एयर मूवमेंट क्लोज ऑन ए
क्लोथ्स लाइन विल ड्राई मोर क्विकली ऑन ए विंडी डे देन ऑन ए स्टिल डे। अब बता रहा है कि हमारा जो वाटर है उसमें कौन कौन से सबस्टांसेस होते हैं। आप देखना, अगर सबस्टांसेस या फिर उसमें कोई इम्प्योरिटी होती है तो उसकी इम्प्योरिटी होती है वाटर में, तो उसका इवोपोरेशन डिक्रीज होता है, इवोपोरेशन रेट उसकी लो होती है रेदर देन द प्योर वाटर विदाउट द एनी सबस्टांसेस। आप देखना, एग्जाम एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्योर वाटर लेना और एक लेना सोल्टी वाटर। जो प्योर वाटर है वो जल्दी से इवोपोरेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी या फिर कोई भी सबस्टांसेस नहीं होता, तो जल्दी से हीट अप कर जाता है। अगर उसमें इम्प्योरिटी होती है, जो हीट आएगी ऊपर से सनलाइट के थ्रू, जो हमारी इम्प्योरिटी होती है आधी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वाटर को पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती और जो वो जल्दी से हीटअप नहीं कर पाता, हीटअप नहीं होने से वो जल्दी से वेपोराइजेशन नहीं हो पाएगा। सो ये सबस्टांसेस जो मिक्स होते हैं वाटर में, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। और दूसरा बताया था एयर मूवमेंट। आप देखोगे हमारे घरों में हम तारों पे कपड़े लगा देते हैं और जहाँ से हवा आती है वहाँ से क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं रेदर देन द अदर साइड। क्यों? क्योंकि जहाँ से एयर आएगी तो एयर हमारा जो क्लॉथ है उससे स्ट्राइक करके वापस जाएगी, तो अपने साथ क्या होती है, वो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी साथ में ले जाती है एयर, जिससे क्या होते हैं वाटर जल्दी से इवेपोरेट होएगा, वहाँ से जल्दी से वहाँ से एक्सपेल होएगा, तो हमारा जो क्लॉथ है वो ड्राई हो जाएगा। तो एयर भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। या फिर एक और देखो, मान लो आपने एक बाल्टी में एक बाल्टी है, उसमें अपन ने पानी डाला। वेट ओके, देखो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में हम वाटर फिल कर देते हैं और प्लेट को हम प्लेस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ओके, जैसे सनलाइट प्लेट के वाटर पे स्ट्राइक करेगी तो वाटर हीटअप होएगा और वेपोराइज करेगा। ठीक है। और जैसे पानी वहाँ से वेपोराइज हो रहा है, गैस बन के उड़ रहा है, और जैसे ही अगर कोई एयर मूवमेंट हो गया तो उस वेपर को तुरंत लेके वहाँ से चला जाएगा, फिर वो स्पेस एम्प्टी हो जाएगा, फिर वहाँ से जो दूसरी वेपर है वो जस्ट आ जाएगी। ओके, उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी उसके बीच में ऑब्स्टेकल नहीं होगा, कोई भी उससे रुकावट नहीं होगी, और एयर मूवमेंट चलता जाएगा तो उसकी इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप अगर दौड़ रहे हो, ठीक है, आपके आगे कोई आदमी चल रहा है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और जैसे आपके आगे से कोई आदमी हट गया, आप आगे कोई नहीं है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सेम थिंग अप्लाई इन द रेट ऑफ द evaporation by the air movement. Okay, now move to the next slide. evaporative cooling. अब देखो जो evaporation होता है उससे cooling कैसे होती है। Did you ever notice that moving air cools you down when you are hot and sweaty? For example, if you sit in front of a fan, you feel cooler. That's because moving air helps to evaporate the sweat on your skin. But why does the evaporation of sweat cool you down? When a liquid such as sweat evaporates, energetic particles on the surface of the liquid escape into the air. After these particles leave, the remaining liquid has less energy, so it's cool. This is called the evaporative cooling. देखो, जो हम गर्मी का सीजन है उसमें हम किसी कूलर या फैन के आगे बैठते हैं तो हमको कूल फील होता है, ठंड महसूस होती है। वो ठंड महसूस क्यों होती है? जैसे इस टाइम समर है और मान लो मेरे हाथ में स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है। जैसे फैन ऑन करेगा, मैं फैन ऑन करता हूँ मैं, तो ऑन करने से क्या आएगी, एयर आएगी, और एयर क्या करेगी, जो मेरी बॉडी में जो स्वेट है, जो पसीना है, उसको लेके उड़ जाएगी। ठीक है, वो उसको लेके उड़ जाएगी। फिर जैसे नया पसीना आएगा तो ऊपर आएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को खींचेगा, एनर्जी लेगा। एनर्जी कहाँ से लेगा? वो बॉडी के अंदर से एनर्जी लेगा, फिर वापस हवा के द्वारा वो उड़ेगा। तो उड़ेगा कब वो? जब उसको एनर्जी मिलेगी। कब वेपोराइज होएगा? एनर्जी से हमेशा वेपोराइज होता है। जब हम प्लेट में कर रहे थे वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी? सनलाइट से।
हमारी बॉडी में कहाँ से आएगी एनर्जी? वो हमारी बॉडी के अंदर से वो खींचेगा। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है, जो हीट कम होती जाती है, तो हीट कम होने से हम कैसे फील होएगा? कूल फील होएगा। ओके, तो एवापोरेशन इज प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर कूलिंग ऑफ ओवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बाय द फैन और कूलर। हमको ठंड इसलिए महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि जो एयर आती है वो हमारे जो बॉडी है वहाँ से पसीने को लेके उड़ जाती है। और पसीने क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को लेके उड़ जाता है। जैसे हमारी बॉडी में हीट की क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। हीट की क्वांटिटी डिक्रीज होने से हमारे अंदर जो हमको कूलिंग फील होती है, ठंड महसूस होती है, वो हीट के कम होने के कारण फील होती है। अंडरस्टूड? अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, जो हमारे घरों में जो मटका होता है, ओके, तो मटके में क्या होता है कि ठंडा पानी जाता है। अब मटके में ठंडा पानी क्या होता है? देखो जैसे ये मटका है, ठीक है, तो मटके में क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ही स्मॉल होल्स होते हैं। जो वाटर के होता है वो होल्स के द्वारा इसकी सरफेस पे जाता है, सरफेस पे आएगा। और जैसे कोई हवा आएगी, जैसे हवा आती है तो इसके सरफेस पे से जो वाटर के मॉलिक्यूल होती है उसको यहाँ से उसको लेके फ्लाई अवे कर जाती है, यहाँ के लिए उसको लेके उड़ जाती है, ठीक है। तो जैसे ये मॉलिक्यूल वाटर का हवा के साथ में चला जाता है, कब जाएगा वो मॉलिक्यूल, कब उड़ेगा? क्योंकि उसके पास एनर्जी होगी, उसके पास हीट होगी। तो वो हीट कहाँ से आएगी? वो पानी के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। फिर अगेन दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा तो वो भी इसके अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से उड़ जाएगा। तो इस कड़े के अंदर क्या होती है? हीट कम होती जाती है। जो हीट कम होती जाएगी पानी ठंडा होता जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था कि पानी, घड़े के अंदर पानी ठंडा कैसे होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। वी हैव completed our first unit science for class 9th. If you have any doubt, you can message in the group or personally in my contacts. Okay, and in the evening I will send you worksheet for this unit, and you have to do the answer with question in your workbook, mean fair book. And if you know the answer, then you can write down. If you don't know, leave that place, and after some time I will send the answer of the worksheet. Okay, if you have any doubt, can message or my contacts. Thank you.